Now, continuing with the same chapter, molecular basis of inheritance. If you remember, in the previous lectures, we have done about the structure of DNA and also about the packaging of DNA. You know the structure of DNA and how the packaging is done for prokaryotic DNA as well as for eukaryotic DNA. So today the next part is heterochromatin and euchromatin. Now, what actually the difference between heterochromatin and euchromatin is, if you stain the genetic material, if you stain the chromosome, if you stain the nucleic acid, that is DNA or chromosome, you will get alternate dark and light bends on the DNA. You will get alternate dark and light bends on the chromosome or on the chromatin. These alternate dark and light bends, depending upon the staining ability, will be classified as heterochromatin and euchromatin. Okay. Now, the dark part is called as heterochromatin, while the light part is called as euchromatin. How they are classified and what is the criteria for being dark and light in appearance? Now, heterochromatin, the segment of chromosome or chromonema. Chromonema is the subpart of chromatid. You know, chromosome usually has two chromatids, and the subpart of chromatid is called as chromonema. So, segment of chromosome or chromonema in condensed state, it is in the condensed state, it is in the, more closely associated state, will be called as heterochromatin. While if it is loose, non-condensed state, thoda ढीला hoga, so it will be called as euchromatin. As said earlier, on the basis of staining ability, it appears dark, stains strongly, it accepts the stain, it accepts the more stain, and it appears comparatively dark. While euchromatin is comparatively light, it stains lightly. Now, heterochromatin, which appears, although it appears dark, it has more amount of DNA, but it is genetically inactive. It is genetically inactive, and this part is genetically more active. This part is genetically more active. Active in what sense? It is given here. This part is genetically inactive, this part is active. It is active because it participates in transcription. So, transcriptionally active. Transcription means DNA से mRNA का formation is called as transcription, where it is also called as more active because it, you can say, replicate comparatively fast. So, as far as controlling of function, as far as functions are concerned, this part is comparatively more active. It participates more actively in protein synthesis. Its transcription is comparatively fast, and it replicate also fast. While heterochromatin, this part is genetically inactive. Transcriptionally, it is also inactive. Transcriptionally, it is inactive, and also it shows slow replication. So that is the basic difference between heterochromatin and euchromatin. On the chromosome, we are seeing alternate dark and light bends. They are called as heterochromatin and euchromatin. Now, the next slide heading given in your book 4.4 is DNA replication. Now, what actually the DNA replication is? First, I will introduce what the DNA replication is, then we will start with the process, with the mechanism. As you know the importance of DNA will be considered as wonder molecule because in a cell, it is responsible for controlling the functioning of entire cell. Not only in the cell, it is responsible for controlling protein synthesis. It is responsible for controlling the mechanism of formation of other molecule. It controls phenotypic trait. It is responsible for heredity, responsible for variation. So DNA is very important as far as functioning of cell is concerned. DNA is responsible for heredity, responsible for variation, and responsible for controlling many activities of the cell. It even controls the metabolism of the cell. Now, what actually the replication is? Replication is a process of doubling the DNA to make the replica of
टू मेक द कार्बन कॉपी ऑफ, जो डीएनए हमारा होता है उस डीएनए को डबल करना, डीएनए का एक और सेट बनाना, दैट इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन. तो इन दिस टॉपिक विल डिस्कस हाउ द रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस. नाउ नीड ऑफ रेप्लिकेशन. व्हाट इज अ नीड ऑफ रेप्लिकेशन? रेप्लिकेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? देखो, जब भी सेल डिवीजन होता है, जब भी सेल डिवीजन होता है, चाहे वो माइटोटिक डिवीजन हो या मियोटिक डिवीजन हो, जेनेटिक मटेरियल हैज टू बी डबल. फॉर एग्जाम्पल, अगर माइटोसिस हो रहा है तो सेल विथ 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिवाइड टू फॉर्म 2 डॉटर सेल एंड बोथ द सेल हैविंग 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, both the cell having same number of chromosome as compared to that of parent cell. तो जब तक डीएनए डबल नहीं होगा तब तक सेम और इक्वल अमाउंट में डीएनए डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता. इसी तरीके से मियोसिस होता है. मियोसिस में, कंप्लीट मियोसिस में, विच इंक्लूड्स मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, मियोसिस में a cell with 2n number of chromosome divide to form 4 daughter haploid cell. मतलब 2n number of chromosome, n 4n हो जाता है. तो जब तक डीएनए डबल नहीं होगा तब तक मियोसिस या माइटोसिस पॉसिबल नहीं है. तो सेल की डबलिंग के लिए, सेल डिवीजन के लिए डीएनए को डबल होना पड़ता है. इन शॉर्ट, डीएनए को रिप्रोड्यूस करना पड़ता है, डीएनए का रेप्लिकेशन करना पड़ता है. सो दैट इज द मेन थिंग. और ऐसा क्यों होता है? सो दैट द इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन विल ट्रांसफर फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल. एक 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाली सेल में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन थी, नाउ द सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन विल बी प्रेजेंट इन बोथ द डॉटर सेल. So that is the significance of DNA replication. Now DNA has to perform two important function. DNA has to perform two important function. One is heterocatalytic function and second one is autocatalytic function. Let us see one by one. Heterocatalytic function. If DNA is capable of synthesizing any molecule other than DNA, अगर डीएनए कोई दूसरा मॉलिक्यूल बनाता है, डीएनए के अलावा कोई दूसरा मॉलिक्यूल बनाता है, इफ डीएनए सिंथेसाइज अदर मॉलिक्यूल मींस अदर देन डीएनए, तो सच एबिलिटी इज कॉल्ड एज हेटेरोकैटालाइटिक फंक्शन ऑफ डीएनए. नाउ फॉर एग्जांपल, फॉर हेटेरोकैटालाइटिक फंक्शन, एज वी नो, डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है. डीएनए इज कैपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए. This mechanism is called as transcription. So that is the example of heterocatalytic function. Another thing, DNA can also synthesize the protein. DNA can make the protein, it can make the enzymes. So this function is called as translation. So both are the example of heterocatalytic function. Now autocatalytic function क्या है? If DNA is able to synthesize the same molecule, that is able to synthesize the same DNA, DNA अगर अपने ही जैसा और DNA बनाए, so that is called as autocatalytic function. यानी DNA से DNA का बनना, DNA का डबल होना, DNA का रिप्रोड्यूस करना is called as autocatalytic function. Example is replication, जिसके बारे में, इसी के बारे में at present हमको पढ़ना है, replication के बारे में पढ़ना है. Now रेप्लिकेशन क्या है? व्हाट इज रेप्लिकेशन? अभी मैंने बताया था, रेप्लिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ डबलिंग द डीएनए. इट इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग कार्बन कॉपी ऑफ डीएनए. डीएनए को डबल करना. डीएनए डबल स्ट्रैंडेड जो डीएनए होता है, वो डीएनए अपने जैसा एक और डीएनए बनाता है जिसपे सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है. सो दैट इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन. नाउ इन द केस ऑफ यूकैरियोट्स, you know what is eukaryotic cell? Cell with well organized nucleus, cell with nuclear membrane is called as eukaryotic cell. यूकैरियोटिक सेल में जो सेल साइकिल होती है, बेटा सेल साइकिल होती है, सेल साइकिल में दो मेन फेस हैं. नीचे इंटरफेस था और ऊपर एस फेस था. इंटरफेस जिसमें सेल डिवाइड नहीं होती है, इट इज कॉल्ड एज प्रिपरेटरी फेस. सेल डिवाइड होती है सिर्फ एस फेस में. तो इंटरफेस, सेल साइकिल के इंटरफेस में जिसमें सेल डिवाइड नहीं होती है, इंटरफेस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 सब फेसेस: G1 फेस, S फेस एंड G2 फेस.
इसमें से जो मिडिल वाला एस फेस है, सिंथेटिक फेस कहते हैं, उस फेस में क्या होता है, उस फेस में डीएनए की डबलिंग होती है, उस फेस में रेप्लिकेशन होता है। मतलब एक्चुअल में रेप्लिकेशन कहां पर होता है, एस फेस ऑफ इंटरफेस। इंटरफेस में 3 फेस हैं, उसमें से मिडिल फेस एस फेस है, एंड इंटरफेस इज अ पार्ट ऑफ सेल साइकिल। Now DNA replication is of semi-conservative type. DNA का जो replication होता है यूकैरियोट्स में, it is of semi-conservative type. Semi-conservative type in the sense DNA जब डबल होता है तो half of the DNA get conserved from the previous generation. यानी जो पुराना डीएनए होता है वो पुराना डीएनए नए डीएनए में आधा होता है और नए डीएनए में आधा नया डीएनए होता है। एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से 2 डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनते हैं। हर डॉटर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में जो नए बने हैं उसमें आधा नया है, आधा पुराना है। मतलब आधा हाफ मटेरियल इज कंजर्व्ड फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन। इसका डिस्क्रिप्शन भी आगे आ रहा है, हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो डीएनए का जो रेप्लिकेशन है दैट इज ऑफ सेमी कंजर्वेटिव टाइप, मींस हाफ ऑफ द मटेरियल गेट कंजर्व्ड फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन। नाउ दिस सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, the model for semi-conservative replication will be explained by the scientist Watson और क्रीक ने इसे एक्सप्लेन किया था, जिन्होंने डीएनए का 3D स्ट्रक्चर भी एक्सप्लेन किया था, उसी के सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन के मॉडल को भी एक्सप्लेन किया। तो विल स्टडी अबाउट द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन नाउ। ये रेप्लिकेशन का कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन था। नाउ स्टार्टिंग विद द next part, that is replication, the mechanism of replication. Now the next part is process of semi conservative replication. मैंने अभी आपको बताया था कि what is semi conservative replication, the replication in which 50% of the material is conserved from the parental side, that is from the parental DNA, is called as semi conservative replication. Now this process of semi conservative replication according to your textbook complete in 7 steps. These are the 7 steps given in your book. First one is activation of nucleotide. Second one is point of origin, that is initiation point. Third one is unwinding of DNA molecule. Fourth one is replication fork. Fifth one is synthesis of new strands. Next one is leading and lagging strand. And the last one is formation of daughter DNA. एक एक करके मुझे एक्सप्लेन करना है, starting with the first point. Activation of nucleotide is given here. Second point is given here. थर्ड पॉइंट यहां पर दिया है, उसके बाद आगे के पॉइंट्स में आपको समझाऊंगा। नो एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, देखो बेटा रेप्लिकेशन कहां पर हो रहा है, रेप्लिकेशन सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, क्रोमैटिन न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो रेप्लिकेशन न्यूक्लियस के अंदर होता है। न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड है, दैट फ्लूइड इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म में ये सभी मैकेनिज्म होते हैं। 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स, आपने डीएनए के स्ट्रक्चर में पढ़ा था। डीएनए हैज 4 टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेसेस। 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड मे बी प्रेजेंट इन डीएनए। डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है, 1 मिनट याद दिलाऊं। न्यूक्लियोटाइड में 3 केमिकल हैं, बीच में पेंटोज शुगर था, एक तरफ फॉस्फेट था, एक तरफ नाइट्रोजन बेस था। तो बेटा नाइट्रोजन बेस जो थे उसके 2 टाइप थे, प्यूरीन और पायरिमिडीन। प्यूरीन के 2 टाइप थे, एडिनाइन एंड ग्वानाइन। पायरिमिडीन के 2 टाइप थे, थायमिन एंड साइटोसिन। सो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेसेस, न्यूक्लियोटाइड 4 टाइप के होते हैं। 4 टाइप्स ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड is present in nucleoplasm, that is the fluid present in the nucleus. न्यूक्लियस के फ्लूइड में ये प्रेजेंट है, राइट। अभी वो 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स कौन से हैं, देखो डिपेंडिंग अपॉन दी नाइट्रोजन बेसिस ना, इसमें एडिनाइन है, ये ग्वानाइन है, ये साइटोसिन है और ये थायमिन है। दीज आर दी 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो डीएनए में प्रेजेंट हो सकता है।
नाउ डी स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोज, वो डीएनए का न्यूक्लियोटाइड है, बिकॉज आरएनए में भी न्यूक्लियोटाइड होता है जिसमें राइबोज शुगर है, इसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर है। एट प्रेजेंट इसमें एक फॉस्फेट है, ये सब मोनोफॉस्फेट के स्टेज में है। अब इनका एक्टिवेशन होगा बिकॉज दे हैव टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन में जो नया डीएनए बनेगा, रेप्लिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ डबलिंग, तो जो नया डीएनए बनेगा उस नए डीएनए को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स यूज होंगे, उस नए डीएनए को बनाने के लिए जो न्यूक्लियोटाइड्स यूज होंगे, वो यही न्यूक्लियोटाइड्स आगे जाके यूज होंगे। तो इनको पार्टिसिपेट करना है डीएनए के सिंथेसिस में, डीएनए के फॉर्मेशन में इनको पार्टिसिपेट करना है। तो पार्टिसिपेशन के लिए इनका प्रिपरेशन चल रहा है। इनको क्या किया जाएगा, इनका एक्टिवेशन होगा, एक्टिवेशन ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड। अभी एक्टिवेशन कैसे होगा, दे आर एक्टिवेटेड बाय एटीपी। एटीपी एनर्जी रिच मॉलिक्यूल, एनर्जी करेंसी जिसे कहते हैं। तो एक्टिवेटेड बाय एटीपी, एटीपी से फॉस्फेट इसमें ऐड होगा, फॉस्फेट का ऐड होना एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका फॉस्फेट इसमें ऐड होगा, ये न्यूक्लियोटाइड्स में ऐड होगा। सो एडिशन ऑफ फॉस्फेट, द रिएक्शन इज कॉल्ड एज फॉस्फोराइलेशन। ये रिएक्शन का नाम होगा फॉस्फोराइलेशन। दीज न्यूक्लियोटाइड्स आर एक्टिवेटेड विद द हेल्प ऑफ एटीपी। एटीपी डोनेट्स फॉस्फेट, phosphate is accepted by nucleotides, so the reaction is called as phosphorylation. This reaction needs an enzyme. phosphorylation के लिए जो enzyme लगेगी, that enzyme is phosphorylase enzyme use होती है। Now deoxyribonucleotide triphosphate, ये मोनोफॉस्फेट स्टेज में थे, अब वही एक्टिवेट होकर ट्राइफॉस्फेट स्टेज में हो गए। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड्स थे वही न्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सीराइबोज डीएनए के न्यूक्लियोटाइड, ट्राइफॉस्फेट 3 फॉस्फेट के साथ हैं। नाउ दीज आर द न्यूक्लियोटाइड्स विथ नाइट्रोजन बेस एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसिन एंड थाइमिन। दीज आर द एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स, राइट। ये पहला स्टेप है जिसमें एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड में क्या बताया गया। देखो बेटा, नया डीएनए बनने के लिए डीएनए क्या है, डीएनए इज अ लॉन्ग चेन सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो हमें न्यूक्लियोटाइड जैसे वॉल बनाने के लिए ब्रिक्स लगेंगे, वैसे डीएनए के फॉर्मेशन के लिए न्यूक्लियोटाइड्स लगेंगे। तो ये न्यूक्लियोटाइड्स को प्रिपेयर किया गया बिकॉज आगे रेप्लिकेशन होने वाला है। ये पहला स्टेप है। न्यूक्लियोटाइड्स नाउ आर रेडी फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। द सेकेंड पॉइंट, पॉइंट ऑफ ओरिजिन और इनिशिएशन पॉइंट। नाउ पॉइंट ऑफ ओरिजिन और इनिशिएशन पॉइंट, जो पैरेंटल डीएनए है, जो पैरेंटल डीएनए है जिस पे रेप्लिकेशन होना है, जिसके डीएनए को डबल करना है, उस डीएनए पर पॉइंट ऑफ ओरिजिन, कहां से रेप्लिकेशन शुरू करना है, किस पॉइंट से रेप्लिकेशन शुरू करना है, दैट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ ओरिजिन, also called as initiation point. Now point of origin or initiation point is denoted by capital letter O. O से डिनोट करते हैं, origin का O है, और termination जहां पे ये प्रोसेस खत्म होगा, the termination point will be denoted by capital letter T. तो O और T ये डीएनए पे पर्टिकुलर स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा और जहां पे रेप्लिकेशन खत्म होगा। नाउ द यूनिट ऑफ डीएनए, द पार्ट ऑफ डीएनए which participates in replication, which participates in replication is called as replicon. वो डीएनए का पार्ट जो रेप्लिकेशन में पार्टिसिपेट करेगा, यूनिट ऑफ डीएनए which actively participates in replication is called as replicon. Now prokaryote, that is bacterial cell, kingdom Monera. Prokaryote has only one replicon. मतलब एक ही जगह से, एक ही पर्टिकुलर पॉइंट से उसमें रेप्लिकेशन होगा। और यूकैरियोटिक सेल हैज several replicon in tandem, मतलब उसमें बहुत सारे छोटे छोटे एक के बाद एक रिपीटेड यूनिट्स जो होंगे वो रेप्लिकॉन के होंगे। यानी यूकैरियोट में सेवरल पॉइंट से इनिशिएशन हो सकता है, सेवरल टर्मिनेशन पॉइंट हो सकते हैं, अलग अलग पार्ट में डीएनए रेप्लिकेट करेगा। तो यूकैरियोट्स में डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। नाउ दिस इज द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पैरेंटल डीएनए जहां पे रेप्लिकेशन होना है,
पॉइंट ओ इज द ओरिजिन पॉइंट, जहां से रेप्लिकेशन शुरू करना है, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट करना है। बच्चों रेप्लिकेशन स्टार्ट करने में पहली एंजाइम जो यूज हो रही है एंडोन्यूक्लियेज। रिमेंबर, endonuclease is the enzyme which is responsible for nicking, responsible for cutting the DNA strand. ये एंडोन्यूक्लियेज नाम की एंजाइम, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में से दोनों स्ट्रैंड को नहीं, पर्टिकुलरली एक स्ट्रैंड को कट करेगी। ये पर्टिकुलरली एक स्ट्रैंड को कट करेगी और एक स्ट्रैंड को कट करने के बाद, अच्छा कट करने में कैसे कट करेगी, क्या कट करेगी, आपने लास्ट टाइम पढ़ा था डीएनए जो होता है, डीएनए पे मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियोटाइड्स, उनके बीच में जो बॉन्डिंग थी ना, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, लास्ट टाइम डीएनए के स्ट्रक्चर में मैंने बताया था न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में जो बॉन्ड होती है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, तो ये एंडोन्यूक्लियेज विल कट द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। In other words, you can say it is cutting the DNA. It will cut the phosphodiester bond. तो ये phosphodiester linkage को, phosphodiester backbone जो है ना, phosphate और sugar के बीच में ये bonding होती है। शुगर के कार्बन नंबर 3 और नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट के बीच में बॉन्डिंग होती है, जिसको शुगर फॉस्फेट बैकबोन भी कहते हैं। उसको ये कट करेगा और ये दोनों स्ट्रैंड को नहीं, एक ही स्ट्रैंड को कट करेगा और ये कटिंग भी टेम्पररी होगी। और इट कट ओनली वन स्ट्रैंड टेम्पररीली, यानी बाद में वो वापस से ज्वाइन भी हो जाएंगे। इनके कट करने की वजह से रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म स्टार्ट होता है। सो दैट इज द सेकेंड पॉइंट। तो यहां पे क्या आपने पढ़ा सेकेंड पॉइंट में, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, कि पर्टिकुलर पॉइंट से ही रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, दैट इज पॉइंट ऑफ ओरिजिन। हाँ, तो ये पॉइंट में आपने पढ़ा कि पर्टिकुलर पॉइंट है पॉइंट ओ, दैट इज ओरिजिन, टर्मिनेशन पॉइंट है। रेप्लिकेशन की यूनिट एक भी हो सकती है, मल्टीपल भी हो सकती है। और एंडोन्यूक्लियेज नाम की एंजाइम रेप्लिकेशन के लिए डीएनए के एक स्ट्रैंड को पर्टिकुलर पॉइंट से कट करती है। नाउ द थर्ड पॉइंट, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए। अभी कल मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स ना एक दूसरे के ऊपर ऐसे रैप है। डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड एंड हेलिकल इन शेप। तो डीएनए की जो कॉइलिंग है, अच्छा दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है। दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में ना डीएनए का ये एक स्ट्रैंड है, ये दूसरा स्ट्रैंड है, बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है। ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड है, सी और जी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ये भी आपको बताया गया था। फ्रॉम पॉइंट ओ, दैट इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, हेलिकेज नाम की एंजाइम, देखो यहां एंडोन्यूक्लियस का काम हो गया। नाउ द सेकेंड एंजाइम इज हेलिकेज। हेलिकेज एंजाइम क्या करेगी? हेलिकेज एंजाइम इट ब्रेक्स द हाइड्रोजन बॉन्ड। अभी दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट होगी। तो हेलिकेज एंजाइम इट कट्स द हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द टू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, प्रेजेंट बिटवीन द टू अपोजिट स्ट्रैंड। दो अपोजिट स्ट्रैंड के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, उस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हेलिकेज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है। तो दोनों स्ट्रैंड्स अब तक एक दूसरे से ज्वाइन थे, अटैच थे, अब ये दोनों स्ट्रैंड्स ना एक दूसरे से दूर जाएंगे, बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा। सेपरेट एंड अनवाइंड बोथ द स्ट्रैंड्स। बच्चों ये दोनों स्ट्रैंड्स ना, लेट मी एक्सप्लेन, ये दोनों स्ट्रैंड्स डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये पहले ऐसा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था, राइट, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था। अभी हेलिकेज एंजाइम के ब्रेक होने की वजह से हेलिकेज ने क्या किया, अब ये डीएनए ना यहां से अनवाइंड होने लगा। बोथ द स्ट्रैंड्स दे स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, बिकॉज बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड पहले था, अब यहां पर अभी भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहां पर अभी भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन यहां पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड था वो हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के टूटने की वजह से दोनों स्ट्रैंड्स दूर जाना स्टार्ट होंगे। सेपरेट एंड अनवाइंड बोथ द स्ट्रैंड्स। नेक्स्ट पार्ट, वाई शेप रेप्लिकेशन फोक। अब ये मोर और लेस वाई शेप स्ट्रक्चर बनेगा, जैसे जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड ओपन होगा मोर और लेस वाई शेप स्ट्रक्चर बनेगा। तो दिस वाई शेप स्ट्रक्चर इट इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन फोक।
this type a fork-like appearance develop in the DNA during replication called as replication fork. Now each strand act as a template. ये पहले दोनों ज्वाइन थे, अब ये अलग हुआ स्ट्रैंड और ये अलग हुआ स्ट्रैंड। बेटा ये दोनों स्ट्रैंड जो अभी अभी अलग हुए हैं, सेपरेट हुए हैं, ये दोनों स्ट्रैंड अब टेम्पलेट का काम करेंगे, मोल्ड का काम करेंगे। ये दोनों स्ट्रैंड अब पैरेंट का काम करेंगे और इनकी इंफॉर्मेशन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन प्रेजेंट ऑन द टू सेपरेटेड स्ट्रैंड इसके सामने नया स्ट्रैंड बनेगा। So they act like a template, they act like a mold, they act like a parent, they act like a original copy जिसकी मदद से Xerox, जिसकी मदद से रेप्लिका बनेगा। तो ये दोनों सेपरेटेड स्ट्रैंड जो हैं ये टेम्पलेट का काम करेंगे। Each strand act as a template. Now अभी ये दोनों को अलग किया गया, दोनों को अलग करने के लिए कौन सी एंजाइम यूज हुई? दोनों को अलग करने के लिए मैंने बताया हेलिकेज नाम की एंजाइम यूज हुई है। हेलिकेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द टू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। अभी अभी इनको अलग किया गया है। इमेजिन यहां पर अगर ए था, यहां पर टी था, यहां पर सी था, यहां पर जी था, इसके बीच में डबल बॉन्ड था, इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड था। हेलिकेज ने इसको ब्रेक तो कर दिया, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि ये वापस से रीजॉइन हो जाए, ये वापस से अटैच हो जाए, बिकॉज स्टिल दे हैव द कॉम्प्लीमेंट्री बेस। आमने सामने वाली बेस तो अभी भी कॉम्प्लीमेंट्री है, मैच हो रही है, तो उनके बीच में वापस से बॉन्डिंग तो हो सकती है। वापस से बॉन्डिंग ना हो, वापस से बॉन्डिंग ना हो, इसके लिए देखो रीजॉइनिंग और रिकॉइलिंग, उनका वापस से जॉइंट होना, वापस से कॉइल होना, रीजॉइनिंग एंड रिकॉइलिंग इज प्रिवेंटेड बाय SSBP, single strand binding protein. It is a type of protein जो एक एक स्ट्रैंड पे अलग अलग एक्ट करती है और कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड को आपस में कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड वापस से डेवलप नहीं होने देती है। मतलब अब SSBP जो यहां पर लग गई, ये SSBP यहां पर एक्ट कर रही है, यहां पर एक्ट कर रही है। बिकॉज ऑफ SSBP ये आमने सामने वाले वापस से जॉइंट नहीं हो पाएंगे। तो now replication fork is on both the strands, means SSBP act separately on both the strand ताकि ये दोनों स्ट्रैंड वापस से जॉइंट ना हो। यहां तक समझने के बाद we are very much near to the further mechanism। आगे के ये 3 स्टेप अभी तक मैंने बताया, आगे के स्टेप बाकी हैं। अभी तक देखो बच्चों, 1 मिनट में रिवाइज करते हैं पूरा पार्ट। These are the 7 steps which is these are the 7 steps in sequence during replication of DNA। पहले DNA के प्रिपरेशन, जो नया DNA बनेगा उस नए DNA को बनाने के लिए क्या लगेगा? यूनिट्स लगेंगे, रॉ मटेरियल लगेंगे। वो रॉ मटेरियल क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स है। उनको यहां पे एक्टिवेट करके रेडी किया गया ताकि जो नया डीएनए बनेगा उसमें इसको हम यूज करें। अभी नया डीएनए बनने के लिए जो पुराना डीएनए है, जो पैरेंटल डीएनए है, उस पैरेंटल डीएनए को यूज किया जाएगा। उसका ओरिजिन पॉइंट O, उसका टर्मिनेशन पॉइंट T, उसके ऊपर नंबर ऑफ यूनिट 1 हो सकता है, मल्टीपल हो सकता है, और इसको एक पर्टिकुलर साइड से कट किया गया, एंडोन्यूक्लियस ने कट किया, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। ये पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर क्या हुआ? हेलिकेज ने हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक किया, दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हुए, वाई शेप स्ट्रक्चर। देखो ये हेलिकेज स्लोली एंड ग्रेजुअली मूव्स, ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। जैसे जैसे हेलिकेज आगे बढ़ेगा ये और ज्यादा ओपन होता जाएगा। अब ओपन होने के बाद ये दोनों स्ट्रैंड्स को टेम्पलेट, ओरिजिनल कॉपी कहते हैं, जिसपे नया डीएनए बनेगा, और ये दोनों स्ट्रैंड्स आपस में रीजॉइंट ना हो जाएं, इसके लिए SSBP इज रिस्पॉन्सिबल, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल। ओके, अभी एक चीज देखो, यहां पर रेप्लिकेशन फोक बन चुका है। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस रेप्लिकेशन फोक, ना इसी रेप्लिकेशन फोक को मैं नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से कंटिन्यू करके पॉइंट नंबर 4 रेप्लिकेशन फोक से कंटिन्यू करता हूं। नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट लेक्चर में आई विल कंटिन्यू फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोक।